राधे राधे बच्चों, वेलकम बैक इन माय चैनल राधे गोविंद साइंस मैथ पाठशाला. Today we start exercise number 5.2 of chapter 5 lines and angles. Let's start. Question number 1 is state the property that is used in each of the following statement. ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं एज फॉलोइंग, उनकी हमें प्रॉपर्टी बतानी, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई होंगी. फर्स्ट क्वेश्चन इज योर इफ ए बी इज पैरेलल, दीज टू लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर देन एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल 5. क्यों है ये एंगल वन एंगल 5 के इक्वल क्यों है? बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इस तरह से होते हैं, जैसे 1 and 5, इसमें 2 and 6 है, 4 and 7 and 3 and 8. ऑल दीज आर एंगल कॉरस्पॉन्डिंग. सो वी स्टार्ट फ्रॉम 1 to 5, 2 to 6, 4 to 7 and 3 to 8. These are all corresponding angle. तो इसकी डेफिनेशन दे रखी, इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर. दो लाइनें अगर एक दूसरे को, दो समांतर रेखाएं को एक रेखा अगर काटती हैं ट्रांसवर्सल, तो बनने वाले जो कोण होते हैं उनका ईच पेयर क्या कहलाता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. नाउ वी कम ऑन 4 and 6. 4 and 6, in our previous video I told about this Z-like structure. Z-like structure is known as alternate interior angle. So here are 4 and here are 6. These are alternate interior angle. So angle 4 is equals to angle 6. तो क्या रीज़न हो गया इसका? when it transfers cut two lines such that pair of alternate interior angle are equal, the line have to be parallel. ये एंगल क्या कहलाते हैं? हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया इसमें? अगर सेकंड भी पूछता तो 3rd and 5 आर आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, नाउ वी कम ऑन थर्ड. 5 एंगल 4 and 5 प्लस 180, मतलब इसने प्लस गलत लगाया, यहाँ पे इक्वल्स टू आएगा. सॉरी, हियर इज इक्वल्स टू. 4 and 5 का रीज़न क्या है कि ये दोनों 180 होते हैं. वाई? बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल. दीज आर को इंटीरियर एंगल. व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट two lines such that pair of interior angle on the same side of transversal are supplementary. These angle are also known as supplementary angle. The line have to be parallel. So these angle are co-interior angle, yes, supplementary angle. Or another one are 3 and 6. 3 and 6 is also co-interior angles. Now we come on question number 2. In the adjoining figure, identify the pair of corresponding angle. We have to identify which one is a corresponding. In our first question, we identified how many corresponding angle. So here there was 2 lines. Okay, here are only 1 line. So don't get confused. Corresponding angle 1 and 5, 2 and 6. Okay, पेयर्स बनाने 1 and 5, 2 and 6, 6 है ना, एंड 4 and 8 and 3 and 7. These all are corresponding angle. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आइडेंटिफाई करने, तो वो कैसे करेंगे? देखो, जेड बनाएंगे हम. अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल में जेड 3 and 5 है ना, और फिर उल्टा जेड बनाएंगे, तो इस तरह से. तो यहाँ पे क्या है? 2 and 8 है ना, तो 2 and 8 and 3 and 5. Now we come on third. The pair of interior angle on the same side of transversal. इंटीरियर एंगल्स के पेयर्स बताने सेम साइड के. ट्रांसवर्सल 3 and 8.
ये इस तरह से ट्रांसफर, दीज आर ट्रांसवर्सर और को इंटीरियर एंगल, है ना। तो क्या हो गए 3 and 8 एंड 2 and 5, इस तरफ के कौन हो जाएंगे 2 and 5। नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट आमने सामने के कौन बताने हैं 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3, 4 and 2, 8 and 6, and 5 and 7. These are vertically opposite angles. Now we come on question number 3. In the horizontal figure where P is parallel to Q, find the unknown angle. हमें unknown angles का पता करना है. Okay, this is very interesting question. So what we do first, you can see this is a straight line. Okay, this ये given है हमें 125. तो how was E angle? E angle what we do 180 minus 125, so we get 55. तो E का क्या वैल्यू आ गया 55. ओके, E is 55. अब now you can see E के अपोजिट में कौन है F, तो E and F are vertically opposite angle, तो E is equals to F हो गया. तो ये 55 है तो ये भी 55 होगा. तो these are vertically opposite angles. Okay, now we come on, this is straight line. Okay, here AB, ये भी है, दो एंगल यहाँ पे लीनियर पेयर है. लीनियर पेयर का क्या वैल्यू होता है 180. ओके, तो 180 इफ देखिए एफ एंगल 55 आया ना, क्योंकि E 55 है. तो अब देखो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बन रहे हैं. एफ और E क्या है यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर. तो जब एफ E 55 है तो F is also 55, then A is also 55 because these are alternate interior angle. If A is 55, A का वैल्यू क्या है 55, then how much B? B को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे. We identify A is 55, तो how much B left? B would 180, we deduct 55 from 180, we get 125. तो B क्या हो गया 125. Okay, now we consider this line. बहुत सारे रीज़न है देखो यहाँ पे निकालने के, लेकिन एक सिंपल फंडा है अपोजिट एंगल. इफ़ A is 55, then how much C? C is also 55 because opposite vertically angle, and B is 125, so D is also 125 because opposite vertically angle. And we can also identify by to make like a straight line, है ना. ये straight line बने. If this is 55, then how much it's left 125. If this is 125, then how much ये 125 and ये 55 180 में से डिडक्ट करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो दिस इज़ द रीज़न all of the angles you can write like this. Okay, now we come on next question. Here, find the value of x in each of the following figure if L parallel to M. टू लाइंस गिवन है यहाँ पे. L किसके पैरेलल है M की. तो आइडेंटिफाई करना है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें. ओके, इफ दिस इज 100 to 10, तो हाउ मच दिस लेफ्ट 70 because we minus 180 minus 110 we get 70. तो अब ये देखो, अब क्या बना लो, ये इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना लो. ये 70 तो ये भी क्या होगा 70. तो सिंपल, so x we get 70. Okay, now we come on second. Identify this x and this x value. तो x कितना होता है 2x plus 2x is equals to 3x, और इसका वैल्यू क्या होता है 180 because these are corresponding angle. तो x is equals to 180 by 3, so we get 60. तो x की वैल्यू क्या आ गई 60 and 2x की वैल्यू this is 60 and this is 120. Okay, and you can see here example. Okay, now we come on third one is
This angle is given 100, then how much this left, this angle, this is 80. Okay, if this is at 80, because these are alternate interior, ये 80 है तो देखो ये भी 80 है ना, है ना। तो अब ये पूछ रहा है इसकी क्या वैल्यू होगी, जब ये 100 है तो ये वाला कितना होगा 100, सॉरी 80, तो ये 80 है तो x का क्या हो जाएगा 100, बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ना। ये 100 है तो ये 80 और ये 80 है तो ये 100, इनका वैल्यू क्या होता है भाई 180 होता है ना। तो बस आ गया आंसर, सिंपल, बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x. Now we come on question number 5th. In the given figure, the arm of the two angles are parallel. If triangle ABC is 70, then find angle DGC. We have to find angle DGC. ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है. So given AB is parallel to, we know AB is parallel to DE, and BC is a transversal line. भाई AB ये है और एक DE है, these are two parallel line. इनको कौन काट रही है, एक लाइन काट रही है ट्रांसवर्सल, जिसका क्या नाम है BC. तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, देखो ABC गिवन है, कितना है 70 है, तो DGE भी कितना होगा 70 होगा. क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इस तरह से होते हैं. तो ये 70 तो ये कितना रह गया 110. अब ये 110 तो ये कितना रहेगा, ये 70 ही रहेगा ऑब्वियसली. तो दिस इज़ द रीज़न ऑफ angle DGE कि why it is 70, because these are corresponding angle. Now we come on second, identify DEF आइडेंटिफाई करना है. DEF कितना होगा, है ना. तो DGE तो हमने फाइंड कर लिया, DGE के इक्वल कौन है DEF है, ये एंगल ही इसके इक्वल है. DGE के इक्वल कौन है DEF है, बिकॉज दीज आर आल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, इनको कौन कट कर रही है, एक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन विच नेम इज ED. तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें इफ दिस एंगल इज 70 देन DEF आल्सो 70. ओके, today's last question number 6. In the given figure below, decide whether L is parallel to M. आइडेंटिफाई करना है कि L M के पैरेलल है या नहीं है. सो सिंपल, देखिए ये लाइन L और M दोनों पैरेलल है, बिल्कुल है, दिख रही है ना, बिल्कुल दिख रही है. लेकिन हमें क्या देखने हैं, इनके एंगल्स देखने हैं. यहाँ पे एंगल गिवन है. सो इफ़ वी ऐड 126 and 44 we get only 170. 10 number is कम है इसमें, तो the L is not parallel to M. Okay, now we come on second question. second question में क्या है, देखिए L और M का ये टू लाइंस तो पैरेलल दिख ही नहीं रही है. क्यों, क्योंकि ये इस दिशा में जा रही है, ये इस दिशा में जा रही है. तो ये तो एंगल ही इसमें तो 75 150 हो रहा है. तो और इसका डायरेक्शन भी सही नहीं दिख रहा है. तो बोथ दीज रीजन आर करेक्ट. सो L इज़ नॉट पैरेलल टू M because some of the angle does not obey the property of the parallel line. Now we come on third. 57 and 123 given है. तो these angle, these sum कैसे हुआ ये, क्योंकि ये क्या है इंटीरियर है ना, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है. इफ़ दिस इज़ 123 एंड दिस इज़ आल्सो 123, तो इसका टोटल कितना आ रहा है 180. तो दिस लाइन इज़ पैरेलल टू वन अनदर. L and M
are parallel to each other, so this is correct. And last one is 98 and 72 is also 170. So L is not parallel to M because some of the angle does not obey the property of the parallel line. So now today we finished exercise number 5.2. Okay, Radhe Radhe, we will meet in next chapter, chapter number 6. Radhe Radhe, have a nice day.